Hello everyone, welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. As you know, my name is Shaheen. अभी तक हमने पढ़ा था पार्ट 1 में अ बेकर फ्रॉम गोवा, जहां में हमने गोवा के बारे में पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेड एंड बेकर के बारे में पढ़ा था. Part 2 जो था that was about Coorg, which is a district in Karnataka and how beautiful it is, which is also known as Scotland of India. And उसकी जितनी भी ये जो टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, whether these are the adventurous things, adventurous sports, the animals that you can see over there, the landscape which is beautifully described by the author. And now we have reached to Assam, that is tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Many of you are fond of tea. बहुत सारे लोग हैं जो टी के बहुत शौकीन होते हैं. Even when they are going to restaurants to take tea. So you can imagine कि यहाँ हमारे इंडिया के अंदर टी लवर्स का जो है एक बहुत ही बड़ा रेशियो है, and most of the people they love tea. ठीक है? तो I think those people are going to enjoy the chapter. Even if you are not a tea lover और आप ज्यादा शौकीन नहीं भी हैं, तो भी it's important for you to learn the chapter. Clear? All right, let's learn about the author. Arup Kumar Datta is an Indian writer and journalist from Guwahati, Assam. Okay. Now children, पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अमेरिकन राइटर्स हमारे काफी आ चुके थे, तो हमने उनके बारे में आई टोल्ड यू दैट काइंडली कीप अ नोट कि कितने अमेरिकन राइटर्स, कितने अमेरिकन पोएट्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय एन इंडियन राइटर. सो मेक अ नोट ऑफ दोज इंडियन राइटर्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस. जो हमारे सिलेबस के अंदर इंडियन राइटर्स जितने भी हैं, सो प्लीज कीप देम इन योर माइंड. ऑलराइट. So he was from Guwahati and he was a journalist. He has written 16 books for adults and 7 adventure novels for young people. That means he not only writes for adults, but he also writes for children, young people. In 2014, he was awarded the Lifetime Achievement Honor. All right? Lifetime Achievement Honor by Association of Writers and Illustrators for Children, New Delhi. The Indian chapter of the International Board of Books for Young People. These are the achievements of Mr. Arup Kumar Datta. He has also won numerous awards, including the Shankars Award in 1979, conferred to mark the International Year of the Child. He has been awarded the Civilian Award Padma Shri by Government of India in 2018. You can just see the image. This is the image of Mr. Arup Kumar Datta receiving the Padma Shri, all right, by the President. Along with teaching, he also started his journalist career writing freelance satirical columns and short stories for numerous Indian magazines and newspapers. In the course of few years, he established himself as journalist of repute at the national level. His writings featured in journals such as the Illustrated Weekly of India. These are the name of the journals in which his writings were published. ये जर्नल्स के कुछ नेम्स हैं, मैगजीन्स के कुछ नेम्स हैं जिनमें इनकी राइटिंग्स जो है वो पब्लिश हुई थी. क्या क्या नाम है उनके? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, द कारवां, फेमिना, जेएस, ईव्स वीकली, एटसेट्रा. ही वाज अ प्रोमिनेंट राइटर इन द फेमस इंडियन सैटारिकल मैगजीन शंकर्स वीकली. ठीक है. सो शंकर्स वीकली जो है ये क्या है? एक इंडियन सैटारिकल मैगजीन है जिनके लिए भी इन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली लिखा है. ठीक है. एंड ही हैज बीन अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस इंडियन मैगजीन. क्लियर? सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ऑथर. ऑलराइट, लेट्स बिगिन द चैप्टर. अब ये जो चैप्टर है ये सिर्फ डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करके रखा जैसे कि कूर्ग में किया था. तो वहां पे उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था ऑथर ने कि जब उन्होंने कूर्ग विजिट किया तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कूर्ग को देखा था. ठीक है. उनका डिस्क्रिप्शन हमने जाना था. ऑलराइट. यहाँ पे इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी कि दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे. ठीक है. वन ऑफ द फ्रेंड्स ही बिलोंग्स टू असम. ठीक है. एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, अनदर फ्रेंड इज गोइंग विद हिम टू विजिट हिज होम टाउन. ठीक है. वो उसके साथ में जा रहा है. वेकेशन है, ब्रेक है, जैसे आप सभी समर वेकेशन में कहीं ना कहीं जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी एक फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ जो कि असम को बिलोंग करता है उसके साथ में उसके होम टाउन विजिट करने जा रहा है. क्लियर? ऑलराइट. सो यहाँ पे ये दो कैरेक्टर्स है. वन इज प्रांजल एंड द अदर वन इज राजवीर. So Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. All right. So these both children are classmates and they are studying at Delhi. ठीक है. Pranjal's father is the manager of tea garden. ठीक है. जो प्रांजल के फादर हैं वो क्या है? वो मैनेजर है. कहाँ पे? एक टी गार्डन में इन अपर असम
Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Clear children? यहाँ पे हमें ये क्या पता चला है कि जो प्रांजल के फादर हैं, he is the manager of a tea garden in Assam, and therefore Pranjal has invited Rajveer to visit Assam. ठीक है, प्रांजल ने इसीलिए राजवीर को इनवाइट किया है समर वेकेशन पे कि वो उसके होम टाउन विजिट करे और वहां पे अपना जो है समर वेकेशन स्पेंड करे. क्लियर चिल्ड्रन? ओके, तो ये जो है एक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे. आपने you know, most of you when you have traveled in trains, and I'm sure everyone would have traveled. So जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत कॉमन सी जो साउंड सुनने को मिलता है वो क्या है? चाय गरम, चाय चाय चाय, राइट? तो सिमिलरली ये चैप्टर भी इसी से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर सिटिंग इन अ ट्रेन. चाय गरम, गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. ठीक है, वेंडर कौन होता है? जो चीजों को बेचता है. तो यहाँ पे वेंडर कौन है? ये टी सेलर है जो चाय बेच रहा है. तो हाई पिच, आपको पता है बहुत लाउड इनकी वॉइस होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दूर तक इनकी आवाज सुन सके, इनके अराइवल को फील कर सके, यस कि चाय वाला आ गया है. एंड मेनी पीपल दे एंजॉय टी इवन ड्यूरिंग देयर जर्नी. तो यहाँ पे भी जो ये जर्नी इनकी स्टार्ट हुई है, ये चाय वाले से ही स्टार्ट हुई है. He came up to their window and asked, चाय साहब. और जो बाहर भी घूम रहे होते हैं स्टेशन पे, जब तक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन होती है तब भी आपको पता है कि बाहर से भी विंडो पे, जब हम लोग विंडो सीट पे होते हैं तो बाहर से भी लोग पूछते हैं कि चाय साहब आपको चाय चाहिए? Give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और उन्होंने 2 कप चाय ऑर्डर किया, प्रांजल ने और राजवीर ने, एंड पूरा कंपार्टमेंट जो था ऑलमोस्ट दे ऑल वर हैविंग टी. दे ऑल वर टेकिंग सिप ऑफ टी. क्लियर? सभी की चाय पी रहे थे उस कंपार्टमेंट के अंदर. Do you know that Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. So Rajveer ने थोड़ा सा होमवर्क किया था before he was going to Assam, and that we all do this. हमें अगर हम किसी नई जगह पे विजिट करते हैं तो हम पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं. We search about it on internet कि इसके बारे में क्या चीज सिग्निफिकेंट है और क्या चीज डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस दैट पर्टिकुलर प्लेस, वेदर एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे भी राजवीर ने उसके बारे में पढ़ा था, एक अच्छा सा होमवर्क किया हुआ था. सो उसने प्रांजल की अटेंशन सीख करते हुए क्या कहा कि डू यू नो over 80 crore cups of tea. How many? 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. यानी कि पूरे वर्ल्ड में हर रोज क्या रेशियो है चाय पीने का? 80 crore cups every day. ठीक है? Can you imagine? Alright. So this is एक static है जो उसने शेयर किया है यहाँ पे. You, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Pranjal buried his nose. What is the meaning of buried his nose? इसका मतलब होता है कि वो एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, तो उसने बुक पढ़ते पढ़ते प्रांजल, why was he not taking so much interest in the information shared by Pranjal? राजवीर जो टी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, तो प्रांजल ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा था? बिकॉज ही ऑलरेडी बिलोंग टू दैट प्लेस. वो पहले से ही असम को बिलोंग करता था, चाय के बारे में इतना कुछ जानता था, एंड टी लीव्स, ही हैज बीन टू दैट प्लेस सेवरल टाइम्स. सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट हैविंग दैट मच इंटरेस्ट एज राजवीर वाज शोइंग. जितना इंटरेस्ट राजवीर को था, जितना क्यूरियोसिटी के साथ राजवीर वांटेड टू गो टू दैट प्लेस टू विजिट असम, उतनी क्यूरियोसिटी प्रांजल में नहीं थी. एंड ऑफ कोर्स, एंड अगेन इट इज वेरी कॉमन इन ह्यूमन बिहेवियर. अगर नॉर्थ के लोग साउथ में जाएंगे सो दे वुड बी वेरी क्यूरियस, राइट, कि हमें यहाँ जाना है, क्या करना है, क्या. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग टू गो, अगर हम साउथ वालों को बोलेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, तो वुड डू यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू शो एनी इंटरेस्ट? No, because they are already living in that environment. वो उस environment में already रह रहे हैं, तो उनको ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होगी, इतना इंटरेस्ट नहीं होगा. ठीक है, सिमिलर इज द थिंग हियर कि प्रांजल बरीड, जैसे ही ये कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, राजवीर ने एक इन्फॉर्मेशन खत्म की, तो प्रांजल बरीड हिज नोज, यानी कि अगेन वो जो बुक पढ़ रहा था उसमें अगेन ही डिड लाइक दिस. ठीक है, बरीड हिज नोज, यानी कि ही गॉट बिजी इन दैट. ठीक है, सो यहाँ पे ये फ्रेज जो यूज हुआ है ना, बरीड हिज नोज, दैट मीन्स again he got back to his reading. Okay, again he got busy in reading the book. Rajveer too was an ardent fan of detective story. What is the meaning of ardent? Ardent का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा passionately जिसको फॉलो करते हैं. ठीक है, बहुत ही strong fan था किसका? डिटेक्टिव स्टोरीज का. But at the moment
but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. ठीक है, so ऐसा नहीं है कि only Pranjal was interested in reading the book, ऐसा नहीं है. राजवीर को भी सेम इंटरेस्ट था. राजवीर also had the same curiosity, same interest in reading detective stories, but right now he wanted to enjoy the scenery, the beautiful scenery outside the train window. Clear? बाहर वो देखना चाहता था, उसके जो जितने भी लैंडस्केप्स थे, जो टी गार्डन्स आ रहे थे, वो उनको देखना चाहता था, एंड ही वांटेड टू एंजॉय द जर्नी. क्लियर? It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. And what was actually seeking his attention? Rajveer की attention क्या चीज जो है ज्यादा seek कर रही थी? The greenery outside. इतना ज्यादा green because there were gardens everywhere. तो दूर तक they were stretched. तो जो gardens थे, they were stretched at a wider area. You can see this is an image from Assam. The tea gardens. These are the tea gardens which are stretched. You can see कितना ज्यादा दूर तक ये स्ट्रेच है, कितने ज्यादा दूर तक ये फैले हुए हैं टी गार्डन्स. तो इसीलिए राजवीर जो था वो ज्यादा बाहर देखने में इंटरेस्टेड था, लैंडस्केप देखने में इंटरेस्टेड था. क्लियर? एंड प्रांजल वाज बिजी इन रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. Alright? पहले तो सारे ग्रीनरी देखते देखते वो लोग उनकी नजरों में क्या आई? टी बुशेस. It was a magnificent view. It was a beautiful view. बहुत ही सुंदर नजारा था. Against the backdrop of densely wooded hills. What is the meaning of densely wooded hills? यानी कि densely का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गहरा, deep. तो densely wooded hills यानी कि बहुत ही गहरे जंगल थे वहां पे. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. यानी कि जहां तक भी नजर जाती थी. What is the meaning of as far as the eye could see? यानी जहां तक भी नजर जाती थी, जितनी दूर तक नजर जाती थी, वहां पे क्या नजर आ रही थी? टी बुशेस नजर आ रही थी. टी गार्डन्स जो थे वो नजर आ रहे थे. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. And amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. All right, very important. So यहाँ पे क्या है? Dwarfing the tiny tea plants. Dwarf का क्या मतलब होता है, children? Dwarf वो होते हैं जो छोटी हाइट के लोग होते हैं, उनको dwarf बोलते हैं. तो dwarfing the tiny tea plants यानी कि जब आप किसी चीज को दूर से देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? बहुत ही टाइनी इमेज नजर आएगी, बहुत ही छोटी इमेज नजर आएगी. स्पेशली व्हेन वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन. अगर हम ट्रेन में बैठ के बाहर कोई चीज बाहर का नजारा देखेंगे या दूर तक कोई चीज देखेंगे तो वो हमें बहुत छोटी नजर आएगी. Isn't it? So that is why it said dwarfing the tiny tea plants. यानी dwarfing यानी कि छोटे छोटे नजर आ रहे थे वो सारे पेड़. What tall sturdy यानी कि उन्हीं के बीच में क्या थे? Tall sturdy. Sturdy का मतलब होता है strong. All right? What is the meaning of sturdy? Sturdy means strong. उन बुशेस के पास में ही क्या थे? बहुत बड़े बड़े स्टर्डी यानी कि स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े पेड़ जो शेड दे रहे थे, ऐसे पेड़ थे. एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस का क्या मतलब है? यू कैन सी हियर, यहाँ पे हर ये सारी जो बुशेस हैं ये ऑर्डर में लगी हुई हैं. राइट? यू कैन सी 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो. राइट? सो ये सारे ऑर्डरली अरेंज्ड हैं. इजंट इट? सो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अमिस्ट का मतलब इसी के बीच में, द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस busily moved doll-like figures. क्या है यहाँ पे सिमिली एम्प्लॉय हुआ है? doll-like figures यानी कि छोटी छोटी गुड़िया जैसे लोग जो है, गुड़िया ऐसा लग रहा था गुड़िया घूम रही है यहाँ पे. ठीक है, गुड़िया जैसे फिगर्स घूम रहे थे. क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि वहां पे जो लोग थे they were tea pluckers, जो चाय की पत्तियां तोड़ते हैं. राइट? तो वो कैसे लग रहे थे? दूर से ऐसा लग रहा था they are dolls मूव कर रही हैं यहाँ पे छोटी छोटी. क्यों? Because he was looking at them from a distance. वो उनको बहुत दूर से देख रहा था. ठीक है. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और डिस्टेंस पे क्या नजर आ रही थी? एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी. उस बिल्डिंग से what was billowing? स्मोक जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था. ठीक है, बड़ी लंबी लंबी चिमनीज लगी हुई थी उस बिल्डिंग के ऊपर और वहां से स्मोक जो था वो रिलीज हो रहा था. Hey, a tea garden! राजवीर cried excitedly. और जैसे ही राजवीर की नजर एक टी गार्डन पे पड़ी, वो बहुत एक्साइटेड हो गया. एंड ही सेड, "Hey, see, just look there. There's a tea garden." Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. What is the meaning of didn't share Rajveer's excitement? यानी कि एक तरफ तो राजवीर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि just see there is a tea garden. Look there. लेकिन on the other hand,
Pranjal, who was born and brought up there, जो वहीं पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था, उसके लिए एक common environment था, he didn't share his excitement, means he was not as excited, means he was not at all excited as Rajveer was. ठीक है, so didn't share Rajveer's excitement का क्या मतलब होता है कि he was not excited as Rajveer was. Clear? All right. On this, oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. All right. So यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि असम में जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो प्लांटेशंस है, वो टी की जो प्लांटेशंस है वो कहाँ है, असम के अंदर है. और यहाँ पे इतने टी गार्डन्स है कि आप अपनी पूरी लाइफ भी अगर विजिट करते रहोगे, दे आर नॉट गोइंग टू एंड. क्लियर? I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. And Rajveer ने क्या बोला कि मैं इतने टाइम से I've been researching about this tea, tea and tea gardens. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Okay? So Rajveer ने क्या बोला कि हर चीज का एक इन्वेंशन या डिस्कवरी हुई है कहीं ना कहीं. So यहाँ पे Rajveer is saying कि कोई भी नहीं जानता कि एक्चुअली टी को किसने डिस्कवर किया है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं. लेजेंड्स यानी कि बहुत ओल्ड स्टोरीज. ठीक है, स्टोरीज जो हैं. व्हाट लेजेंड्स? ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रांजल ने थोड़ा सा पूछा कि कौन से लेजेंड्स है. वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. तो उन्होंने बताया एक स्टोरी तो ये है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. इट इज अबाउट अ चाइनीज एम्परर. एक चाइनीज एम्परर था जिसकी हैबिट क्या थी कि वो पानी पीने से पहले हमेशा उसको बॉईल किया करता था. ठीक है, जब भी उसको पानी पीना होता था, फर्स्टली ही वुड बॉईल इट एंड देन ओनली ही वुड ड्रिंक इट. सो इट वाज अ हैबिट ऑफ दैट एम्परर. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. But one day, accidentally, what happened, means it was not at all intentional, accidentally it happened that some twigs, leaves of the twigs, पत्तियां जो थी वहां पे, टहनियां थी, टहनियों पे पत्तियां लगी हुई थी, वहां से उस पॉट में जहां पे पानी गर्म हो रहा था, जिस पॉट के अंदर, उसमें से कुछ पत्तियां उसमें गिर गई एक्सीडेंटली. लेकिन जैसे ही वो पत्तियां गिरी उस पानी में, एंड जब उस एम्परर ने उस पानी को पिया, उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया. इट इज सेड दे वर टी लीव्स. और ये कहा जाता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी, द लीव्स दैट फेल इनटू दैट पॉट, दोज वर द टी लीव्स. ये कहा जाता है या ये माना जाता है कि जिन पत्तियों ने उस पानी को इतना डिलीशियस फ्लेवर दिया था, वो कौन सी पत्तियां थी? टी लीव्स थी. Tell me another. Scoffed Pranjal. What is the meaning of scoffed? Scoffed का मतलब होता है किसी को मॉक करना. ठीक है, प्रांजल को पता था कि राजवीर is not going to stop and he would definitely tell him another story. तो इसको पता था कि बोला कि ठीक है, tell me another, दूसरी स्टोरी बताओ. Alright, mocking at him. We have an Indian legend too. एक इंडियन लेजेंड भी है. वो कौन सा है? बोधि धर्मा, an ancient Buddhist ascetic. एस्केटिक का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन्ड. ठीक है, जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, आपको पता है मॉन्क्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज सेल्फ डिसिप्लिन्ड. किसी और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम डिसिप्लिन में रहो, वो अपने आप ही अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आते हैं. ठीक है, सो दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन्ड. तो ये बता रहे कि बोधि धर्मा जो थे वो एक बुद्धिस्ट सेल्फ डिसिप्लिन्ड मॉन्क थे. He cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. What is the meaning of eyelids? ये जो आईज के ऊपर का कवर है ना चिल्ड्रन, जो आंखें हम बंद करते हैं, this cover, it is known as eyelid. ठीक है, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी eyelids जो थी ये पूरी ही कट कर ली थी. eyelashes के साथ कंफ्यूज मत होना प्लीज. These are the eyelashes and these are eyelids, जिससे हम आंख बंद कर सकते हैं. तो उनको क्योंकि नींद में प्रॉब्लम होती थी, सोने यानी कि मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती थी, और मेडिटेशन जब करते थे तो उनको नींद आ जाया करती थी. तो इस प्रॉब्लम से रिड होने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया? ही कट ऑफ हिज आईलिड्स. ये जो आईलिड्स का पूरा आई का कवर है जिससे हम आंख बंद कर सकते हैं, हमारी आंख की प्रोटेक्शन होती है, सोते हैं ऑब्वियसली इसकी वजह से सो पाते हैं, इन्होंने ये आईलिड ही रिमूव कर दी. ठीक है, सो ये एक लेजेंड एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली में बौद्ध धर्मा ने अपनी आईलिड्स क्यों रिमूव की थी, ये उन्हीं के स्टेटमेंट्स है दैट I did not cut off my eyelid because I could not sleep, but because I did not want to see the world.
उनका ये रीजन था आईलिड्स रिमूव करने का। ये नहीं था कि उनको नींद आ रही थी, बट ये रीजन था कि वो वर्ल्ड को नहीं देखना चाहते थे। He did not find this world a better place। उनको ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल there were so many people, so many sinners, इसलिए उन्होंने उस चीज से रिड होने के लिए अपनी आईलिड्स रिमूव की थी। बट हमें चैप्टर से स्टिक होना है, जो चैप्टर की इंफॉर्मेशन है उसी से स्टिक रहना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप यही चीज लिखें जिसमें लिखा है इट इज अ लेजेंड, इट्स अ स्टोरी, ठीक है। सो इन्होंने अपनी आईलिड्स क्यों रिमूव कर दी थी? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाई डिड बोधिधर्मा रिमूव हिज आईलिड्स, सो आपका आंसर क्या रहेगा? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग हिज meditation, or you can write according to a legend he felt sleepy during his meditation and therefore he removed his eyelids. Clear, children? All right. The leaves of these plants when put in hot water, 10 tea plants grew out of the eyelids. और जब जहां उन्होंने अपनी eyelids remove की थी वहां से 10 new plants जो है वो grow हो गए, ठीक है, tea plants. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. और इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आईलिड्स इसलिए रिमूव की थी ताकि उनको नींद उनको वो सोए ही ना, इसीलिए उनकी आईलिड्स में से क्या प्रोड्यूस हुए? टी लीव्स। जहां पे उन्होंने वो रखी थी वहीं से टी लीव्स जो है ग्रो हुई, और इसलिए कहा जाता है कि उनकी पत्तियों को जब पानी में बॉईल करके पिया जाता है तो उससे नींद उड़ जाती है, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ लेजेंड चिल्ड्रन, ठीक है। बैनिश्ड मतलब रिमूव करना, फॉरबिड करना, ठीक है, नींद आती ही नहीं है। Tea was first drunk in China, and this is the statue of Bodhidharma, ठीक है, ये बौद्धधर्म का एक इमेज है। You can see he has no eyelids right now. Tea was first drunk in China, राजवीर added. राजवीर ने एक और इन्फॉर्मेशन क्या ऐड की कि सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी? चाइना में। As far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese, ठीक है। तो ये जो चाय वर्ड आया ये कहाँ से आया है? Chinese word है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage, ठीक है। तो यूरोप के अंदर ये कब आई? चाय पॉपुलर कब हुई? 16th सेंचुरी के अंदर, लेकिन तब भी उसे एक बेवरेज के रूप में नहीं पिया चाहता था कि भाई चलो टी या कॉफी, ऐसे नहीं। इट वॉज ड्रंक एज अ मेडिसिन, ठीक है, उसको एक मेडिसिन के तरह से they used to take it. Dear children, so here the information shared by Rajveer, what is he saying? That सबसे पहले चाय कहाँ पी गई? Where was tea first drunk? It was China, and the words like chai and चीनी ये कहाँ से आए? They were also from China. यूरोप में टी कब पॉपुलर हुई? In 16th century, but then also tea was treated more as a medicine than as beverage. Clear? The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Clattered again a sound, जब ट्रेन रुकती है clattering sound produce होता है, ठीक है। तो ट्रेन रुकी and the boys collected their luggage, उन्होंने अपना लगेज लिया and they moved their way through the crowd. भीड़ से होते हुए वो लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। प्रांजल's parents were waiting for them, ठीक है। प्रांजल के पेरेंट्स, बिकॉज प्रांजल वहीं रहता था, उसकी फैमिली भी वहीं रहती थी, तो his parents were already waiting for them at station. Soon they were driving towards Dhekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. All right. Now अब वो कहाँ जा रहे थे? Where they were heading? They were heading towards Pranjal's father's tea garden, ठीक है, which was in Dhekiabadi. An hour later, the car veered sharply off the main road. ठीक है, और 1 घंटे बाद जो है फाइनली कार जो है कहां तक पहुंची? मेन रोड पे आई। They crossed a cattle bridge and entered Dhekiabadi tea estate. ठीक है, एक कैटल ब्रिज आया, उसके बाद उन्होंने धेकियाबाड़ी टी एस्टेट के अंदर एंटर किया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. ठीक है, ग्रेवल रोड यानी कि जो रोड जो थी वो ग्रेवल से बनी हुई थी, और वहां पे क्या थे? एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, यानी कि टी लीव्स, टी गार्डन्स जो थे वो एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड पे स्ट्रेच्ड थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। प्रून का मतलब क्या होता है? ट्रिम हो रखे थे, सभी सेम हाइट पे थे। ऐसा नहीं था एक टी एक बुश जो है वो ऊंची है, एक बुश नीची है। नो, दे वर ऑल प्रून टू द सेम एंड इक्वल हाइट। प्रून का मतलब होता है ट्रिम। आपने देखा होगा ना, टीज को ट्रिम करते हैं टू गिव देम अ गुड शेप, टू ग्रूम देम। यहाँ पे भी all the tea bushes, they were pruned to same height. Clear, children? They were all cut to the same height.
Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. And यहाँ पे you can see ये जो जितने भी हैं सारे टी प्लकर्स हैं, ठीक है, टी लीव्स प्लकर्स हैं. तो यहाँ पे they all have the group, their group, they with bamboo baskets. इनके बैक पे क्या लगा होता है, एक बैम्बू का बास्केट होता है और उसी और एक प्लास्टिक एप्रन पहना होता है इन्होंने. और जो न्यूली स्प्राउटेड, जो नई पत्तियां निकलती हैं टी की, वो टी लीव्स को प्लग करते हैं और अपनी बास्केट में फिल करते हैं उसको. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. यानी कि अब क्या हुआ, प्रांजल्स फादर थोड़ी गाड़ी उन्होंने धीरे की. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था, एक ट्रैक्टर आ रहा था और वो ट्रैक्टर के पीछे क्या था, पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स. और उस ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रेलर जो था, इट वाज अटैच्ड, जिसपे बहुत सारी टी लीव्स थी. तो प्रांजल के फादर ने कार जो था थोड़ा सा स्लो किया सो दैट ट्रैक्टर कुड गो. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? So यहाँ पे राजवीर ने क्या पूछा, राजवीर asked that this is the second flush, यानी कि sprouting का second season है, right? It lasts from May to July and yields the best tea. कब से कब तक होता है ये? May to July. और ये जो season होता है सबसे best tea इसी में produce होती है. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. So when he heard this information being shared by Rajveer, Pranjal's father was surprised and he said, अच्छा तुमने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया. इसका मतलब क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में क्वेश्चंस भी कर रहा था राजवीर और इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स भी शेयर कर रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि yes, he had already researched about this tea and Assam. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, and Rajveer ने इस चीज को एडमिट किया कि definitely I have done my homework. That means मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया इस जगह के बारे में. But I hope to learn much more while I am here. But उसने एक और चीज ऐड की, लेकिन ये तो चलो मेरी थियोरेटिकल नॉलेज है, बट नाउ व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे रहकर भी बहुत कुछ सीखूंगा. that's what I am expecting. ये मुझे होप है दैट जब मैं यहाँ पे अपनी वेकेशन स्पेंड करूंगा तब यहाँ रहते हुए भी मैं बहुत सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली देखूंगा एंड इंफॉर्मेशन जो है मेरी एनहांस या गेन करूंगा. क्लियर चिल्ड्रन? So that was all about tea from Assam, जहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं और दोनों ही जर्नी पे निकले हैं. प्रांजल जो है वो अपने होम टाउन जा रहा है एंड ही हैज इनवाइटेड राजवीर टू हिज होम टाउन, दैट इज असम. और प्रांजल के जो फादर हैं वो कौन है? ही इज अ मैनेजर एट अ टी गार्डन जो कि धेकियाबाड़ी में है. एंड थ्रू आउट द जर्नी जो वो एंजॉय कर रहे हैं, कौन एंजॉय कर रहा है ज्यादा? राजवीर एंजॉय कर रहा है. वाई? बिकॉज ही इज गोइंग टू दैट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम. On the other hand, Pranjal is not at all showing any interest, any surprise, any excitement. Why? Because he was born and brought up in Assam. So he was already, he had seen that environment. He was brought up in that environment. So उसके लिए बहुत ही common चीज. That is why he was not sharing the excitement of Rajveer. Okay, children. So that was all about tea from Assam, and I don't think there's any complications in this chapter. It's very easy, and there are no more in-text questions also in this chapter. That is why we are not discussing it. But main points जो है हमने इस chapter के conceptual पूरा discuss किया है, पूरा text हमने discuss किया है, so that आपको कोई confusion ना हो and you are absolutely clear on this topic. Clear? All right. So we are going to meet next discussing our poem, which is a part of this chapter. Till then, take care, keep learning, keep growing with Winsome International School. Bye-bye.